السلام علیکم پیارے پیارے ریڈرز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول سرکل۔ تو گائز یہ میرا نیو چینل ہے، تو پلیز میری حوصلہ افزائی کے لیے اگر آپ کو میرے ناولز پسند آ رہے ہوں تو پلیز ویڈیو کے نیچے ریڈ کلر کے سبسکرائب بٹن پہ لازمی کلک کر دیجیے گا اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہم اپنے ناول کا پارٹ 5 سٹارٹ کرتے ہیں۔ میں آپ کی بیوی ہوں، آپ کے دکھ سکھ کی ساتھی۔ آپ کے زخم نہیں دیکھے گئے مجھے تو میں بس بینڈیج کر دی۔ اب آپ جو سمجھے، مگر مجھے اچھا نہیں لگتا آپ کا خود کو اذیت پہنچانا۔ وہ اپنے ہاتھ مسلتے ہوئے آہستہ آہستہ کہتی اسے پریشان چھوڑ کر بیڈ کی طرف بھاگ گئی تھی۔ پھر بیڈ پر لیٹ کر اس نے سر سے پیر تک کمفرٹر تان لیا۔ ادھر صوفے پر اسلام اب بھی حیران سا وہیں بیٹھا تھا۔ پھر سر جھٹک کر وہی صوفے پر لیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ آج اس نے بیڈ پر سونے کی غلطی نہیں کی۔ عروشہ جلے پیر کی بلی کی طرح اپنے بیڈ روم میں ٹہل رہی تھی، ساتھ ہی بڑی فراوانی سے ناخن کے ساتھ ساتھ اپنی انگلیاں بھی چبا رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے ہی وہ سو کر اٹھی تھی اور اٹھنے کے بعد پوری طرح سے تیار وہ اب دھڑکتے دل کے ساتھ روم میں ہی پریڈ انجام دے رہی تھی۔ اسلان کی عادت تھی وہ فجر کے بعد سوتا نہیں تھا، مگر وہ نیند میں جھوم جھام کر نماز ادا کر کے دوبارہ بیڈ پر قبضہ جما لیتی تھی۔ اسلان اس کی نظر میں لا جلاد صحیح، مگر اس کی اس خوبی کا وہ بھی اعتراف کرتی تھی کہ وہ کبھی اسے بے تحاشا کھانے یا سونے پر ٹوکتا نہیں تھا۔ اس لیے ہمیشہ دیو کی ساری بے رحمی کو اپنے کھانے سونے کے صدقے میں معاف کر دیتی تھی۔ ہائے اللہ، کیسے سامنا کروں ان کا؟ ہاتھ اٹھا کر دہائی دیتی وہ اللہ سے پوچھ رہی تھی۔ رات کی وہ ساری باتیں بھول چکی تھی سوائے ماں جی کی اپنی خیریت پوچھنے والی بات اب بھی یاد تھی۔ انہی کے ڈر سے وہ روم سے ہی نکل رہی تھی۔ اگر انہیں موقع دیا نا تو اتنا لمبا چوڑا بیوی نامہ اسے احسان کر کے سنا دیا جائے گا کہ اس کے سر سے پیر تک دھواں نکلنے لگے گا، اور جو ہزاروں بیٹے کے احسان گنوائے جائیں گے وہ الگ۔ تم ویسی، میرا بیٹا رحم دل، میرا بیٹا مہربان، وغیرہ وغیرہ۔ شکر کرو بی بی جو میرے نیک فطرت بیٹے کے ساتھ بیاہی ہو، جس نے تمہارے اوپر رحم کھایا ہوا ہے۔ وہ بڑی مہارت سے ماں جی کی نقل کرتی برا سا منہ بنا کر بیڈ پر دھم سے بیٹھ گئی۔ پیر جھلانے کی سپیڈ اور تیزی سے ناخن چھپانے کی سپیڈ میں مقابلہ شروع ہو گیا۔ بابی محترمہ، آج آپ کی شاہی سواری کب نیچے تشریف لائے گی؟ ابھی وہ اسی پریشانی میں غرق تھی کہ نیچے جائے یا نہیں جائے کہ شوخ آواز پر عروشہ نے سر گھما کر دروازے سے جھانکتے سر کو دیکھا۔ دروازے کے اندر اپنا پورا سر گھسا کر جھانکتی ہانیہ معصوم بنی اس سے پوچھ رہی تھی۔ نہیں ہوں میں تمہاری بھابھی۔ ایک تو پہلے ہی وہ جلی تپی ہوئی پریشان تھی، اوپر سے ہانیہ کا بھابھی کہنا۔ اس نے اپنے پاؤں سے سینڈل نکال کر دروازے کی طرف اچھالا تھا، مگر برا ہو اس کے برے نشانے کا۔ ہانیہ تیزی سے ہنستے ہوئے پورا دروازہ کھول کر کنارے ہٹ گئی۔ وہ سینڈل سیدھے ہانیہ کے پیچھے آتے اسلان کے سینے پر گستاخی کرتے ہوئے منہ چھپا کر اسلان کے قدموں میں گر گیا۔ آئی! عروشہ کی جان ہی نکل گئی، منہ سے ہولناک سی چیخ نکلی۔ ہانیہ بھی بوکھلا سی گئی، پیچھے مڑ کر اپنے لالا کو دیکھا جو سینڈل کھا چکے تھے۔ اسے بھی معلوم نہیں تھا اسلان اس کے پیچھے موجود ہے۔ اگر معلوم ہوتا تو خود کسی مہان سپاہی کی طرح گولی بھی کھا لیتی۔ یہ سینڈل کیا تھی؟ وہ اپنی جان سے عزیز سہیلی اور بھابھی کو شہید ہونے سے بچا لیتی، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ ہانیہ منہ پر ہاتھ رکھے اپنے پیچھے کھڑے لال پیلے ہوتے اپنے لالا کو دیکھ رہی تھی۔ دماغ درست ہے نا تمہارا؟ روم میں اسی طرح لال پیلے ہوتے ہوئے داخل ہوتے ہوئے اسلان کی ایک ہی دھاڑ پر عروشہ گھبرا کر بیڈ سے اٹھ کر بھاگنے کی تیاری پکڑ چکی تھی، مگر ستیہ ناس وہ آج بڑے شوق سے پہنے گئے پلازو سوٹ کا اس کے قدموں کو کھلے پائنچے نے باندھ کر پھنسایا تھا۔ وہ سیدھے سیدھے فرش پر گر کر سجدہ ریز ہو گئی۔ اس کے حلق سے دل دہلا دینے والی چیخ نکلی تھی۔ ہانیہ نے دہل کر سینے پر ہاتھ رکھ لیا اور اسلان اس کی بیوقوفی در بیوقوفی پر دانت پیستا 2 قدم اور بڑھا اور روم میں بیچوں بیچ زمین پر سجدہ ریز عروشہ کو شانوں سے تھام کر ایک ہی جھٹکے میں گھسیٹ کر اٹھا کر کھڑا کر دیا۔ عروشہ نے چہرے پر ہاتھ رکھ کر سسکیاں لی تھی، ہاتھ ہٹا کر اسلان کو دیکھنے کی ہمت نہیں کی۔
आशु कहाँ चोट लग गई। अभी वो कोई सख्त बात कहता कि हानिया उनके पास आ गई। वो कहाँ उसे रोता देख सकती थी, इसलिए तड़प कर उनके दरमियान खड़ी हुई थी। असलान ने मुंह छुपाकर रोती आरुषा का शाना छोड़कर एक ही बार में उसके हाथों को जकड़कर उसके चेहरे पर से हटा दिए। आरुषा ने रोते हुए सामने खड़े देव को देखा। लाला, उसे कुछ नहीं हुआ, इसे परेशान मत हो, ये रोज़ का काम है उसका। ये बताओ सैंडल क्यों मारा तुमने मुझे। असलान ने उसके रोने धोने पर झुंझला कर पहले हानिया से कहा, फिर उसके हाथ छोड़कर कमर पर हाथ रखकर रोती आरुषा को बुरी तरह से घूरा था। मेरा घुटना टूट गया, हाय मेरा घुटना, मैं लंगड़ी हो गई, हाय हाय हानो तेरी दोस्त एक पैर की हो गई। वो उसकी बात का क्या जवाब देती, अभी तो उसे अपनी चोट की फिक्र थी। बुरी तरह से रोती वो घुटने पकड़कर वहीं फर्श पर बैठ गई। असलान को उसका रोना धोना, यूं रोने के बीच बीच फरियाद करते हुए बंद आंखों की झड़ी से उसे भी देख लेना साफ साफ मक्कारी ही लगा था। क्या हुआ आशु? लाला प्लीज़ प्लीज़ इसे ले चले डॉक्टर के यहाँ, देखें उसे कितनी तकलीफ़ हो रही है। उसके घुटने में फ्रैक्चर ना हो गया हो, ये लंगड़ी हो जाएगी तो मैं क्या करूँगी। हानिया उसकी तकलीफ़ पर परेशान सी रोहानसी होकर होंठ भींचे और कमर पर हाथ रखकर आरुषा को घूरते खड़े असलान का बाजू हिला हिलाकर इल्तिजा करने लगी। ओके परेशान मत हो, ले जाता हूँ। हानी पहले तुम मेरे लिए एक कप चाय लेकर आओ, मैं चेंज करके चलता हूँ। असलान इस बार नरमी से हानिया का गाल थपक कर रोती हुई आरुषा को भी देख रहा था, जिसका रोना ही कम नहीं हो रहा था। घुटना पकड़े वो हाय हाय करती रोई जा रही थी। बीच बीच में चुपके से आंखों की जरी से असलान को भी देख लेती। वो सब समझ रहा था क्यों ऐसी मकारी की जा रही है। अभी लाई लाला। हानिया बेचारी घबराई सी बहुत तेज़ी से मुड़ी थी। नीचे किसी से कहना मत, आरुषा गिर गई है, सिर्फ हम चलते हैं डॉक्टर के पास। असलान ने आरुषा के पास पंजों के बल बैठे हुए जाती हुई हानिया को ताकीद भी की। अगर उन्हें नहीं कहता तो वो सबसे पहले सबको चिल्ला चिल्ला कर बताती, तब उसे चाय पेश करती या ना भी करती। दोनों की बेवकूफ़ाना हरकतें ऐसी ही थी। हानिया मुड़कर सर हिलाती दौड़ते कदमों के साथ नीचे भागी। हाँ तो जी, कहाँ दर्द हो रहा है? हानिया के जाते ही असलान ने होंठ गोल करते हुए बड़ी नरमी से रोती हुई आरुषा से पूछा। घुटने में वो सू सू करती निगाहें चुरा कर बोली। असलान ने वो और कुछ भी कहे बगैर उसका पाँव पकड़कर सीधा कर दिया और खुले हुए पाइंचे को पैर से ऊपर हटाते हुए, चोट देखनी चाहिए, क्या कर रहे हैं? उसे पाइंचे पैरों से हटाते देखकर आरुषा ने तेज़ी से उसके हाथ पर अपने दोनों हाथ रख दिए। असलान ने भुएं उठाकर आरुषा के चेहरे को देखा। वो बहुत ज़्यादा घबरा चुकी थी। क्या कर रहे हैं? असलान के हाथ पर मजबूती से अपने हाथ रखे हुए उसने असलान को रोका। चोट देखना है, हाथ हटाओ अपना। असलान ने उसके चेहरे को देखते हुए हुक्म दिया। क्या करेंगे देखकर, डॉक्टर के यहाँ चलते हैं ना, वो देख लेगा। वो मनमनाते हुए अपना पूरा जोर लगा रही थी ताकि असलान के हाथ अपने पैरों से हटा दे। बीवी तुम मेरी हो या डॉक्टर की, मैं खुद देखकर बता दूंगा डॉक्टर की ज़रूरत है या नहीं। अब हाथ हटाओ सीधे से। असलान को चोट देखने पर बजीद देखकर वो बौखलाई। नहीं असलान, आपको समझ नहीं आएगा, आप डॉक्टर थोड़ा ही हैं। आरुषा का पूरा जोर उसका हाथ हटाने में लग रहा था, मगर उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि उसके हाथ थक से रहे थे। किसने कहा मुझे समझ में नहीं आएगा, मैं सब समझता हूँ। असलान अब भी उसे ही देख रहा था, जो बुरी तरह से घबराई हुई सारा रोना धोना भूल चुकी थी। देखिए मैं कह रही हूँ ना, वो बेचारगी से कहती फिर से रोने के लिए तैयार हुई। मुंह बंद करती हो या अपने तरीके से मुंह बंद करूँ? हटाओ अपने हाथ। उसे डपट कर उसने एक ही झटके में आरुषा का नाजुक हाथ अपने हाथ से झटक दिया और उसके घुटने को देखने लगा। कपड़ा ऊपर सरकाना ही चाहा कि वो चीख पड़ी। नहीं नहीं असलान, मैं नाटक कर रही थी। असलान की गिरफ्त ढीली हुई और वह पूरी ताकत से अपना पैर छुड़वाकर सही सलामत उठकर दूर हट गई। अब चेहरे पर डर के साथ साथ शर्मिंदगी भी बहुत ज़्यादा थी। अब नहीं हो रहा दर्द, बहुत ड्रामे आ गए हैं तुम्हें। अब मैं बताता हूँ चोट क्या होती है। अपनी जगह से खड़े होते हुए असलान के इरादे बहुत खतरनाक लगे थे। आरुषा दूर जाते हुए जल्दी से अपने कान पकड़कर बोली थी, सॉरी असलान, माफ़ कर दें, वो मैं डर गई थी आपसे ना। मैं हानि को सैंडल मार रही थी, अब गलती से आपको लग गया तो मेरा क्या कसूर? मेरी ये मजाल कि मैं आपको सैंडल मारूं? अल्लाह तौबा, मेरे अब्बाओ अजदाद की भी हिम्मत ना हो आपको मारने की। मैं तो नन्ही सी जान हूँ, अपनी छोटी सी हसीन प्यारी बीवी समझकर माफ़ कर दें। अपने कान पकड़े पकड़े मारे घबराहट के उसके दिल में जो भी आया वो पटर पटर ज़बान चलाती
अपने दोनों कान हाथ पकड़कर वो उससे बोल रही थी। लगातार बोलती वो एक मासूम सी छोटी बच्ची ही तो लग रही थी। असलान ने लाख चाहा कि वो उसी तरह गुस्से से उसे घूरता रहे, मगर वो खुद पर काबू ना रख सका। बेसाख्ता उसके होंठों से हंसी का फवारा छूटा। वो कमर पर हाथ रखे अपने सर को इधर उधर हिलाते हुए बेतहाशा हंस रहा था। आरुषा पर जैसे सख्ता तारी हो गया। देव हंस सकता था, वो हंसते हुए इतना प्यारा भी लग सकता था। उसे मालूम नहीं था वो बुत बनी यकटक उसे देखे जा रही थी। खुद वो ही क्या, खुले दरवाजे पर खड़ी माँ जी और उनके पीछे चाय लेकर खड़ी हानिया भी ये मौजूदा हैरत से देख रही थी। माँ जी की आंखों में बेतहाशा पानी भरने लगा। वो तो हानिया के मुंह से आरुषा के गिरने का सुनकर ऊपर आई थी, मगर क्या मालूम था कि आज ऐसा मंजर देख लेंगी जो सालों का गुबार धो देगा। अपनी आंखें पहुंचती वो मुड़ी थी और नम आंखें ली हानिया को इशारा करते हुए बहुत ही दबे पांव वहां से चली गई। उनके पीछे उदासी से मुस्कुराती हानिया भी चली गई थी। यार क्या चीज़ हो तुम, मुझे समझ में नहीं आता कि तुम पर गुस्सा करूं या तुम्हारी बेवकूफ़ी पर बस हंसूं। असलान अब भी होले होले हंसते हुए खुद को बेखुदी से देखती साख्त सी आरुषा से बोला, पागल हो तुम, बिल्कुल पागल। वो मुस्कुरा कर सर झटकता उसे देख भी रहा था। क्या करूं तुम्हारा आरुषा, असलान मीर बताएंगी आप। आपकी मुस्कुराहट लबों में दबाकर वो इतना प्यारा लगा था कि बेसाख्ता आरुषा चंद कदम चलकर उसके बेहद करीब आ गई और असलान फिर से हैरान रह गया। वो इससे आकर लिपट गई थी। कुछ मत करें असलान, बस हंसा करें, बहुत सूट करती है आप पर हंसी। आपकी हंसी सबसे मुनफरिद है, सबसे अलग, जैसे आप खुद हैं। वो जैसे ख्वाब की कैफियत में घिरी हुई उससे लिपटी अपना चेहरा उठाए उसे देख रही थी। असलान को एकदम से एहसास हुआ कि उसे ऐसे हंसना नहीं चाहिए था। तेज़ी से उसके चेहरे के एहसासात तब्दील हुए थे। एक ही लम्हे में नरम नरम सी वो हंसी कहीं और दूर छुप गई और उसकी जगह सपाट पन्ने ले ली। मैं पागल नहीं जो बिला वजह हंसा करूं, वो रखाई से कहकर अपने कमर पर पड़े आरुषा के हाथ हटाकर उसे दूर कर दिया। आइंदा से फिर से ऐसी बेहुदा हरकत की ना तो हाथ सलामत नहीं रहेंगे तुम्हारे, फिर ड्रामा करने के काबिल नहीं रहोगी। अपनी उंगली उठाकर धमकी देता वो वहीं उसका पुराना देव बन चुका था। निगाहों में उसे धमकी देता वो फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चला गया। हाथ सलामत नहीं रहेंगे, खड़ूस कहीं का। आरुषा उसकी नकल उतारती मुंह बनाती वॉशरूम की तरफ देख रही थी। कुछ देर पहले वाली कैफियत अब भी दिल में एक अलग तरह का दर्द जगा रही थी। क्या हो रहा है मेरे साथ, ये देव फिर से इतना अच्छा क्यों लगने लगा है, और इतना अच्छा कि मैं इससे लिपट गई। अल्लाह तौबा, वो अपने दिल से परेशान ना समझी से खुद से बोली थी। फिर खुद को सरजनिश करते हुए अपने गाल पीटे। फिर वो बेडरूम में रुकी नहीं, बड़ी तेज़ी से वो रूम से निकलती चली गई। असलान ड्रेसिंग रूम से चेंज करके बाहर निकला तो आरुषा अब रूम में नहीं थी, शायद नीचे जा चुकी थी। वो अपने बालों की उंगलियों की मदद से बचते हुए मोबाइल की तरफ मतवज्जा हो गया। मोबाइल उठाकर स्क्रीन पर चमकता हुआ नाम देखकर उसकी पेशानी पर बल पड़ गए। मोबाइल उठाकर उसने कॉल पिक की। क्यों कॉल की है? न सलाम न दुआ, बस कॉल पिक करते हुए बहुत रखाई से कहा था। पेशानी के बल कम होने के बजाय और भी ज़्यादा हुए थे। मत भूले मेरी आशू आपके पास है, उधर से भी किसी रिश्ते का पास नहीं रखा गया था। असलान की रुखाई का जवाब उससे भी ज़्यादा रखाई से दिया गया। तुम भूल रहे हो, वो मेरी बीवी है, उसे मेरे पास ही होना चाहिए। तुम ये मेरी मेरी करना बंद करो। दूसरी तरफ मौजूद शख्स का इतना हक जताता लहजा उसे ज़रा सा भी पसंद नहीं आया था। आरुषा उसकी नहीं थी, उसकी मलकियत। इस शख्स का भले उससे बहुत ख़ास ताल्लुक़ सही, मगर फिर भी उसे अच्छा नहीं लगा, इसलिए जता दिया कि वो अब उसकी बीवी है। हाँ, ज़बरदस्ती की बीवी। उधर साफ मजाक उड़ाया गया। चलो ज़बरदस्ती की ही सही, कम से कम बीवी तो बनाई। तुम्हारे बाप की तरह तो नहीं किया ना जिसने। असलान मीर, वो मेरा बाप नहीं। उधर से चीख पड़ा। असलान मीर का तीर ठीक निशाने पर लगा था। असलान के होंठों पर जहर कुंद मुस्कुराहट उभरी थी। तुम्हारे कहने से हकीकत बदल नहीं जाएगी। हशम शाह नवाज खान। असलान को मज़ा तो नहीं आया था उसकी दुखती रग पर हाथ रखकर, मगर फ़िलहाल अभी हशम के साथ भी यही रवैया दुरुस्त था, इसलिए वो उससे मुखातिब होकर इतना तंद लहजा इस्तेमाल कर रहा था।
یہ مت بھولے اسلان میر، اگر میرا باپ گرا ہوا ہے تو آپ بھی اس سے کم نہیں۔ آپ نے بھی ہماری مجبوریوں کا فائدہ اٹھایا، آپ نے میری شٹ اپ، خاموش ہو جاؤ تم۔ اس نے دھاڑ کر حشم کی زبان خاموش کر دی۔ اپنے اور تمہارے درمیان موجود رشتے کا احترام کر رہا ہوں، ورنہ تم کیا، تمہاری حیثیت کیا حشم شاہ نواز خان؟ اسلان میر سے اس تاخی کرنے والے کی میں کھال ادھیڑ دیتا ہوں۔ ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ کر وہ بہت ہی سرد مہری سے بولا۔ اسی بات کا تو آپ کو غرور ہے اسلان میر صاحب، اپنے رتبے کا، اپنی حیثیت کا، مگر سن لے اسلان میر، جب اس قابل بن جاؤں گا کہ آپ سے ٹکر لے سکوں، اپنی آشو کو آپ کے پاس رہنے نہیں دوں گا۔ اس کی بچکانی باتیں سن کر اسلان میر نے ایک کہکا لگایا تھا، دوسروں کو جلا کر راکھ کرنے والا کہکا، اور حشم جل کر خاک ہو گیا تھا۔ اپنی عمر دیکھو بچے، پھر مجھ سے پنگا لینا۔ جب تک تم مجھ سے ٹکر لینے کے قابل ہوگے تب تک میں تمہیں اپنے بچوں کا ماما بنا دوں گا۔ اپنی مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ کہتے ہوئے اس نے حشم شاہ نواز کو بری طرح سے جلایا تھا۔ حشم نے اپنے دانت ہی کچکچا لیے۔ میں بچوں سمیت آپ سے آشو کو چھین لوں گا، وہ میرے بچے جیسے ہی تو ہوں گے۔ اس کی بچوں جیسی بات پر اسلان اس بار سر جھٹک کر مسکرایا۔ ہم بھی دیکھیں گے، ابھی بس اپنی اسٹڈی پر دھیان دو، تمہیں جہاں بھیجا ہے وہاں سے کامیاب واپس آؤ، کوئی شکایت نہ سنو تمہاری۔ اس بار اسلان نے اپنے بڑے پن کا ثبوت دے کر سختی سے کہا۔ گھبرائیے مت، میں کامیاب بھی ہوں گا اور آپ کا احسان بھی اتاروں گا، کیونکہ آپ بس میرے دشمن ہیں، سمجھے آپ؟ اور ایک بات اس بار چھٹیوں میں اپنی آشو سے ملنوں آؤں گا اور آپ روک نہیں سکتے مجھے، پوری اکڑ کے ساتھ کہتے ہوئے وہ اسلان کے کچھ کہنے سے پہلے ہی اس نے کال کاٹ دی۔ اسلان نے بس سر جھٹک کر فون بیڈ پر پھینک دیا تھا۔ وہ بچہ تھا اور اس کی بچکانی باتوں پر اسے بس غصہ آتا تھا، مگر کبھی نفرت نہیں ہوئی تھی۔ آشو آئینہ کے سامنے بال سنوارتے ہوئے اس نے حشم کا کہا حرف دہرایا۔ اپنی ملکیت پر صرف میرا حق ہے حشم شاہ نواز، اس طرح تمہیں حق جتانے نہیں دوں گا۔ اب جب تم ملو گے تو تمہاری آشو نہیں، وہ اسلان کی روشا ہو چکی ہوگی۔ ناممکن ہوگا تمہارا ہی کیا، کسی اور کا بھی اسے اسلان میر سے جدا کرنا۔ خیالوں ہی خیالوں میں حشم سے کہہ کر وہ خود پر پرفیوم چھڑکتا ایک عزم کرتا، اس پر عمل کرنے کا پورا ارادہ رکھ چکا تھا۔ باہر نہ جانا۔ پھر آئینے کے سامنے سے ہٹ کر وہ بیڈ کی طرف آ گیا، بستر سے اپنا موبائل اور سائڈ ٹیبل سے کار کی کیز اٹھا کر وہ روم سے نکلا تھا۔ آروشا ابھی وہ ہانیہ کے ساتھ کچن میں ہی بیٹھی بڑے آرام سے ٹوسٹ کتر رہی تھی کہ ماں جی اس کا نام لیتی کچن میں داخل ہو گئی۔ انہیں دیکھتے ہی کچن کاؤنٹر پر بیٹھی آروشا اچھل کر نیچے اتری تھی، جلدی سے ہاتھ میں آدھا چبایا ہوا ٹوسٹ اور اس تم دونوں جہاں جاتی ہو وہیں کی رہ جاتی ہو، بس کبھی باتیں ہی ختم نہیں ہوتی تم دونوں کی۔ اور تم آروشا یہاں چھپ کر کیا بیٹھ گئی ہو؟ اسلان آ چکا ہے، اسے چل کر بریک فاسٹ سرو کرو۔ آروشا کو معلوم تھا ماں جی کچن میں آئی تھی تو ادھر سے ایسا ہی کوئی آرڈر موصول ہوگا اور اسے ماننا ہی پڑے گا۔ ماں جی کا بس چلے تو اسے اسلان کی پرسنل سیکرٹری ہائر کر دیں۔ جب تک وہ حویلی رہتی ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ لقمے بھی اسلان صاحب کو آروشا کے ہاتھ سے کھلواتی۔ ویسے اللہ کے فضل و کرم سے کل سے یہ کام بھی انجام دے رہی تھی۔ وہ وہیں کھڑی جلی بھنی اوٹ پٹانگ سوچے جا رہی تھی۔ بت بن گئی ہو کیا سنائی نہیں دے رہا ہے آروشا؟ اس بار انہوں نے گھرکا تو وہ جلدی جلدی سر ہلا کر کچن سے نکلنے لگی۔ جا کر وہاں بت بن کر کھڑی مت ہو جانا، یا بس خود مت ٹھونسنے لگنا، اسلان سے بھی اچھے سے پوچھ لینا۔ ماں جی کے طنز پر ہانیہ نے آروشا کا بنتا منہ دیکھ کر اپنی مسکراہٹ دبائی۔ منہ کیا بنا رہی ہو؟ کیا کہا میں نے؟ ماں جی اس کا بنتا منہ دیکھ کر تپی تو جلدی سے اپنے منہ کا زاویہ ٹھیک کیا۔ اب ٹھیک ہے ماں جی، ہونٹوں پر
ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट से जाकर मासूम बनकर पूछा, काश दिमाग भी शक्ल की तरह ठीक होता। माँ जी बड़बड़ाई तो हानिया की हंसी निकल गई और वो पैर पटक कर किचन से ही निकल आई। अल्लाह ना करे मेरी जैसी सास किसी को मिले, पूरी हिटलर की जान नशीन है, उसकी रूह लेकर आ गई है। वो दिल में जलती कलस्ती डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ती सोच रही थी। डाइनिंग टेबल पर असलान एक शान से कोहनी टेबल पर रखे थोड़ी पर चेहरा टिकाए बैठा शायद उसका मुंतज़िर था। ज़रूर माँ जी ने उसका इंतज़ार करने का कहा हुआ था। कभी कभी माँ जी का दिमाग ऐसे ही उलट जाता था। दोनों मियाँ बीवी को ज़बरदस्ती साथ खिलाने, साथ पिलाने, साथ बैठने, साथ चलने और साथ ही तौबा तौबा वो आगे की ना सोचकर जल्दी जल्दी कदम उठाते ही टेबल तक आ गई। इस वक्त उन दोनों के अलावा वहाँ कोई और नहीं था। ये भी सासू माँ का करम होगा। आरुषा जलकर सोचती, होंठों से सांस खारिज करती टेबल तक आई थी। क्या दूँ आपको असलान? असलान ने चौंक कर पास खड़ी अरुषा को देखा, फिर सर से पैर तक उस पर एक गहरी नज़र डाली। आजकल तुमने फैशन क्लब ज्वाइन कर लिया है जो घड़ी घड़ी ड्रेस चेंज करती फिर रही हो। उसने रुख मोड़कर एक टेबल कोहनी टेबल पर रखी और उसी हाथ की मुट्ठी बनाकर कनपटी के पास रखते हुए अपना चेहरा उस पर टिपकाया और सर से पैर तक अपने सामने खड़ी अरुषा को देखते हुए तंज से बोला। अरुषा को शर्मिंदगी ने आ घेरा। ये माँ जी ना उनका ही दिया हुआ आर्डर था कि वो हर वक्त तैयार रहे और हानिया हर वक्त उसके सर पर सवार उस पर अपने जोहर आजमाती रहती थी। उसे फैशन डिज़ाइनर बनने का बहुत शौक था जो पूरा होना बस एक ख्वाब था, मगर उस पर आजमा कर अपना शौक पूरा कर रही थी। अब भी जैसे वो नीचे आई थी उसे ज़बरदस्ती पकड़ कर सूट बदलवाया, चेहरे पर लेपा पोती कर डाली और हम रंग ज्वेलरी भी पहना डाली। एक सवाल पूछता हूँ और 1 घंटे तक मुंतज़िर रहना पड़ता है कि आरुषा बीबी कब ख्यालों में से बाहर सबसे लड़कर वापिस आएगी और उनके होंठों से कब फूल झड़ेंगे। उसे फिर से मुराकबे में जाते देखकर असलान सर झटक कर तंज करता सीधा होकर बैठ गया। अब ऐसी भी बात नहीं, मुंह से कब फूल झड़ते हैं, मुंह ना हुआ गार्डन हो गया। इंसान मिसाल तो ढंग की दे। आरुषा बड़े आराम से बोलती उसके पास ही चेयर घसीट कर बैठ गई। माँ जी ने क्या कहा था वो भूल चुकी थी। सामने लगा नाश्ता उसकी भूख को चमका रहा था और उसे अब सिर्फ अपने पेट की फिक्र थी। वो बड़े आराम से कीमा भरे पराठे अपनी प्लेट में रखकर साथ ही ढेर सारा सॉस एक तरफ अंडेल कर आराम से खाना शुरू हो चुकी थी। असलान बहुत सुकून से अपने होंठों पर उंगली रखे उसे जल्दी जल्दी खाते देख रहा था। इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता। माँ जी ने अपना सर ही पीट लिया। वो किचन से निकलकर एक बार झांक कर देख लेना चाहती थी कि उसने उनके कहने पर अमल किया कि नहीं, मगर यहाँ तो अरुषा बीबी खुद ही आराम से खाई जा रही थी और उनका बेटा जिसे एक आलम खौफ खाता था आराम से अपने होंठों पर उंगलियां रखे अपनी फजूल ही में डरी डरी रहने वाली बीवी के अंदाज पूरी दिलचस्पी से नहार रहा था। बस एक ही बात है, मैं इसकी मेरे बेटे से जान निकलती है, बाकी टाइम तो महारानी पर कोई असर नहीं होता। आराम से उसके सामने बैठ कर खूब ठूंसती है और जब दिल कहता है फैल कर सो जाती है। वो जल कर सोचती तन फन करती उन दोनों के पास आ गई। उन्हें आते देखते ही असलान अपनी निगाह अरुषा के चेहरे पर से हटा ली। चेहरे पर संजीदगी तारी करके माँ जी के खतरनाक तेवर देखे। आरुषा कुछ कहा था ना मैंने तुमसे? वो गुस्से से खोलती उसके सर पर खड़ी हो चुकी थी। सारा मज़े का पराठा उसके लिए जहर बन गया। वो होंकों की तरह आंखें फाड़े सामने खड़ी सासू माँ को देख रही थी। असलान ने इस बार दिल में हंसते हुए बड़ी संजीदगी से चेयर से पुश्त टिकाकर आराम से सीरियल वाली सिचुएशन का एंजॉय करना चाहा। मम मैं खिलाने वाली थी, बस असलान लेना, इससे पहले कि वो इस पर लानत मलामत करना शुरू हो जाती। अरुषा ने बुरी तरह से घबरा कर अपनी जगह से उठ गई और पूरी रफ्तार से पराठे का बड़ा सा लुकमा बनाकर सिचुएशन एंजॉय करने का इरादा रखते असलान के जबड़े को ज़बरदस्ती पकड़कर लुकमा उसके मुंह में ज़बरदस्ती ठूंस सी दिया। ये सब इतनी जल्दी में हुआ कि असलान मना करने का सोच भी नहीं पाया था। असलान ने मुश्किल से इतना बड़ा लुकमा मुंह में डालते हुए चेहरा घुमा कर कुछ दूरी पर खड़ी हानिया और अम्मा जान की हंसी देखी। फिर टेबल के पास खड़ी मुस्कुराहट छुपाती माँ जी और पूरी पागल सी कभी चिड़िया से सहमी रहने वाली उसकी जोजा मोहतरमा अब भी उसका जबड़ा बड़े अपने नाजुक हाथ में पूरी ताकत से जकड़े हुए थी। असलान जल्दी जल्दी खाए, कितने आराम से खाते हैं आप। इस पर माँ जी का डर इतना सवार था कि दोबारा से उसी रफ्तार से दूसरा लुकमा भी उसके मुंह में ठूस दिया। असलान पहली
बार बुरी तरह छीन के अरुषा की हरकत से वो सबके सामने शर्मिंदा सा हो गया था। मुंह में ठूसे पराठे को चबाते हुए उसने उस पागल को बुरी तरह से घूरा था। उसके हाथ से अपना जबड़ा छुड़वा कर उसने बमुश्किल अपना मुंह चलाकर लुकमा निगला। जल्दी से मुंह खोले, कल रात भी तो मैंने खिलाया था अपने हाथों से, बताए माँ जी को। अरुषा पर माँ जी के डर से बौखलाहट सवार थी। उसे कुछ खबर ही नहीं थी कि क्या कर रही थी, क्या बक रही थी। पराठे के लुकमे बनाते हुए वो सबकी मौजूदगी से भी बेखबर थी। हानिया की हंसी बेकाबू हो रही थी और अम्मा जान मुंह पर हाथ रखकर हंसी दबाई खड़ी थी। असलान ने इस बार चेयर झटके से पीछे करके खड़ा हो गया। यहाँ से चले जाना ही भलाई लगा था। असलान जल्दी से खा ले, वो लुकमा हाथ में लेकर जल्दी से बोली। दिमाग दुरुस्त कर लो पहले अपना। अपनी तरफ बढ़ाया गया इसका लुकमा थमा हुआ हाथ झटक कर वो टिश्यू खींच कर अपने होंठ साफ करता सबसे निगाहें चुरा कर वहाँ से निकल गया। असलान के जाते ही हानिया ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। बहुत बेवकूफ़ हो तुम, सुबह असलान का हंसना और अब वो प्यारी सी झींप। माँ जी को अपनी बहू पर बहुत प्यार आया मगर जताकर सर पर चढ़ाने वाली उनकी आदत नहीं थी। बस इतना कहकर वो वहाँ से चली गई। खुद तो यही चाहती कि बेटे को लुकमा बना बना कर दूं, अब बेवकूफ़ कह रही हैं। अरुषा तप कर पराठे वाला लुकमा खुद ही खाकर वो फिर से बैठ गई। हानिया आकर कुर्सी के पीछे से ही उसके गले से लिपट कर चटाचट उसके गालों को चूमने लगी। भागो, सारा मेकअप खराब कर रही हो। अरुषा ने उसे नाराज़गी के तौर पर पीछे दिखाला। मुझे अब लग रहा है मेरे घर में फिर से खुशियाँ आने वाली है। अम्मा जान प्यार से अरुषा के सर पर हाथ फेरती उसके पास ही दूसरी चेयर पर बैठ गई। आमीन, हानिया ने हाथ उठाकर चहक कर कहा। तो गाइस, इसके साथ ही हम एपिसोड का इख्तिताम करते हैं। आई होप आप इंजॉय कर रहे होंगे इनोसेंट सी हीरोइन, रूड हीरो एंड प्यारी प्यारी सी फ़नी शरारतों को। तो गाइस, अगर आपको मेरा नॉवल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पे कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तमाम उम्मत मुसलमा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।